नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और एडवोकेट प्रदीप नामजियार जी के साथ में हूं यहाँ पे। आप सब लोगों को मुबारकबाद, सारी दुनिया को मुबारकबाद, सारी दुनिया को साधुवाद। किस बात के लिए? आपको याद होगा अभी हाल ही में प्रदीप जी और मैंने स्पाइस जेट के ऊपर एक प्रोग्राम किया था जहां पर यह कहा गया था कि तकरीबन 543 एम्प्लॉई जो हैं उनको एक बहुत अच्छा न्यू ईयर गिफ्ट दिया स्पाइस जेट मैनेजमेंट ने। हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए उनको कहा कि भाई अब आपको आने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट टू कम बैक। हमारे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट सावंत साहब और सतीश बंदल साहब। सतीश बंदल साहब अध्यक्ष हैं स्पाइस जेट यूनियन के। आप सब लोगों को मुबारकबाद। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है आज ही। क्या ऑर्डर दिया है? सभी एम्प्लॉइज को वापस लिया जाए। 463 एम्प्लॉइज को वापस लिया जाए फौरन। जो 80 एम्प्लॉइज हैं उनकी बात बाद में की जाएगी क्योंकि उनको जुलाई में खारिज किया गया था। आज की तारीख में 463 एम्प्लॉइज have been ordered to be reinstated by the Industrial Tribunal. Mr. Savant, congratulations. Mr. Savant, congratulations. Mr. Bandal, congratulations. Pradeep ji, congratulations. सावंत साहब आप बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके नेशन नाउ का, क्योंकि आपने ही ये जो हमारे सामने जो समस्या थी वो कितनी गंभीर है और किस तरह से हम लड़ रहे हैं कोर्ट में और जगह, उसके आपने सारे जनता को दिखा दिया। सब आपके जरिए हमने प्रयास किए। ऑल इंडिया स्पाइस जेट स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से हमने जुलाई महीने में चार्टर ऑफ डिमांड दिया था कि सभी लोगों को परमानेंट होना चाहिए। जो लोग दो सर एक मिनट आज की बात करें। आज के ऑर्डर की बात करें सर। आज अच्छा दिन था कि भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल नंबर 2 ने श्याम सुंदर गर्ग जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने जो ऑर्डर दिया कि जो जिन लोगों को फोर्स से कामगारों को बेरहमी से बेकानून से 1 जनवरी 2022 को निकाल दिया, वो निकालना गलत है। इसलिए उनको तुरंत काम पर लेना चाहिए। ये इंटरिम रिलीफ, ये अंतरिम दिलासा सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल नंबर 2 ने आज हमें दे दिया है। So can we see the effective part of the order? Yeah. Operative part of the order. Yes, What is sir. that, sir? Yes, sir. Oh, here it is. Here is the order of the Industrial Tribunal on going through the above discussion with the touchstone of above case, with the above case laws. My humble opinion is that prima facie case is in favor of 463 employees who are working on 29/12/21, and balance of convenience is also in favor of 463 workers. I do not agree with the argument of learned management advocate that such relief is not granted at interim stage regarding 463 workers. But I agree with learned management advocate that regarding 78+2, that is 80 workers, such relief is not granted at the interim stage because they are not working from 1/6/21. So, interim application regarding 463 workers which were working on 29/12/21 entitled interim stage against their termination or non-renewal of service contract. Management directed that they provide employment of 463 workers as terms of condition which prevailed on 31/12/21 up to next order of this tribunal or superior court. Let me read this out again. That is 463 workers are hereby have to be re-employed. Pradeep ji, this is a great day. Yes. Absolutely a wonderful day. Wonderful. Really and truly, absolutely wonderful day. And Mr. Samant argued the case, and Mr. Samant needs to be congratulated. What a wonderful day for you, sir. Really and truly, absolutely wonderful. Pradeep ji, आप कुछ कहना चाहें? Sir, I'll tell you, this is coming the right time. आज पूरे देश जिस स्थिति में है, हालचाल बहुत खराब है. Employees, there's no employment. It's a worldwide phenomenon. It's a global phenomenon of recession. There's no jobs, less jobs. You got the calamity of COVID, now Omicron. Now, under these circumstances, when a management takes a decision that 463 लोगों को 31st को जिस प्रकार से निकाल दिया, it's an arbitrary decision.
10 years, 10 साल से, जैसे साहब मिस्टर सावंत has very congrats, yes the अध्यक्ष जी बहुत बहुत बहुत, because ये 463 एम्प्लॉयज के लिए एक अपने जो जड़ी बूटी दिए हैं एकदम जबरदस्त वापस लौटने का, इट्स अ ग्रेट न्यूज एंड यू हैव बीन फाइटिंग, मिस्टर सावंत हैज बीन फाइटिंग, सतीश जी अध्यक्ष के माध्यम से फाइट किया, इट्स फैंटास्टिक, इट्स yes and you read one part of the order and we would request, हम रिक्वेस्ट करेंगे इनके माध्यम से अध्यक्ष एडवोकेट अध्यक्ष के माध्यम से कि अजय सिंह हु इज हेड ऑफ स्पाइस जेट इसको मत चैलेंज कीजिए, एक रिक्वेस्ट है, आज माहौल खराब है, लॉकडाउन की स्थिति है, लोग परेशान है, त्रस्त है, वो ग्लोबल रिसेशन है, आपको नुकसान नहीं हो रहा है बिकॉज आपका स्टाफ आप दूसरे स्टाफ से एंगेज कर रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज एजेंसी विच इज ऑलरेडी वर्किंग, इनको आपको वापस नौकरी देना है, SpiceJet is functioning and theirs is an operational job. जब तक एयरलाइन ऑपरेट करता है इनका नौकरी करना ही पड़ेगा, इनको नौकरी करना, their post is never vacant because somebody is working in the other. ना आपको ये करना है, इस चीज को आप चैलेंज मत कीजिए, अपील में मत जाइए, स्टे, यस आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप अजय सिंह जी को रिक्वेस्ट कीजिए अगर चाहते हैं तो, आप चाहते हैं अजय सिंह जी और पूरे स्पाइसजेट टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी वर्कर को, आप जिनको जिनको निकाले सभी वर्करों को काम पे ले, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में जो जो अपने जैसे कंपनी के लिए जो जो इन्होंने काम किया है वो कोई कर नहीं सकता है उतना ये जो निकाले गए वर्कर इन्होंने किया है। तो मैं इन चैनल के माध्यम से अजय सिंह जी और पूरी स्पाइसजेट टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ सबको काम किया, और आज कोरोना काल है, लोगों पे ऐसी परिस्थिति बीत रही है कि कोई दुनिया में आज तक सोचा नहीं थी कि ऐसी महामारी आ जाएगी और ऐसे दिन आ जाएंगे, मगर आज आ गए। उस दिन में आप इनके साथ रहिए, हम भी कंपनी के साथ रहेंगे, आप भी हमारे साथ रहिए। Fantastic. Yeah, great. That's a great achievement. I mean, this is what they said. I would give it back to you, and I hope the head of the SpiceJet listens to this. Mr. Ajay Singh, It's an emotional issue. Mr. Ajay Singh, this is for you. कोई prestige issue नहीं है. We know you are a reasonable man. We know you are a generous man. We also know you are a very large-hearted man. The fact is, these are your people. आपके लोग हैं. 10 साल से आपके साथ हैं. 10 बरस से इन्होंने लॉयल्टी से, ऑनेस्टी से, सिंसेरिटी से आपके साथ काम किया है. आपकी एयरलाइन को बनाया है. आपकी एयरलाइन को खड़ा किया है. बुरे दिन में, अच्छे दिन में, फिर बुरे दिन में, फिर अच्छे दिन में आपके साथ रहें. इनके साथ ऐसा अन्याय ना करें, ये मैं मानता हूं. सर, सावंत साहब, डू यू थिंक मिस्टर अजय सिंह विल लिसन? Yes, I also learn very much about him. He's a very generous man. He's a businessman, and he knows that these people have worked in Corona महामारी पैंडेमिक में. इतना ही नहीं साहब, हमने वो लोगों ने हमारा पगार कम कर दिया. पगार कम करने में हम काम करते हैं. व्हाट वी आर गेटिंग सर, 12,000 से 15,000 तक हम पगार लेके हम काम करते हैं, क्योंकि वो पगार कम कर दिए. फिर भी हम इतना काम करने के बावजूद भी पीएफ का भी हमने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देता नहीं, हम कुछ बोले नहीं. लेकिन हमको बाहर निकालना और हमारे जगह कंट्रैक्टी कामगार लाना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाना, वो उचित नहीं है. कि हम बुरे थे, आपके लोग हैं, हम आपको लोगों को निकाल कर अगर जो बाहर के लोग कंट्रैक्ट कामगार वहाँ लाते हैं और उनसे काम करा के लेते हो, अच्छा नहीं है. हम फिर से आपको रिक्वेस्ट करते हैं, ये तो कानून की बात अलग ही है, कानून के लिए हम संघर्ष करेंगे, न्याय के लिए हम कहाँ भी जाएंगे, बात अलग है. लेकिन आप भी आपका जनरसिटी दिखा के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लोगों को सताना नहीं. लोग आपके लोग हैं, वो लोगों ने पे कानून के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में जाके न्याय मिलाया है, तो वो न्याय का भी आप ऑनर करना. जो ऑर्डर दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने, उसका आप आदर करना, सम्मान करना, और सम्मान के साथ हमें काम पर लोगों को लौटने की इजाज़त देना. सावंत साहब, जी सर. ये तो आपने बात कह दी. जी सर. अब मैं आपसे कुछ कहता हूँ. जी सर. आपको लगता है, बंदल साहब आप भी बताएं, अजय साहब, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ का अजय सिंह साहब के दिल में कोई मलाल हो, कि शायद एसोसिएशन ने या यूनियन ने कोई ऐसी चीज़ करी हो जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा हो कि यार ये बुरा हुआ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्यों, आप बताएं सर, क्या आपने कुछ ऐसा किया कभी? नहीं, हमने तो अभी तक ऐसा कोई, अभी तक एसोसिएशन या वर्कर में कोई ऐसा किया नहीं है कि
कोई गलत काम किया है, जो भी है कंपनी के हित में ही। कोई इंडस्ट्रियल एक्शन लिया आपने कभी पहले? नहीं, आज तक मैं खुद डे 1 से काम कर रहा हूँ इस एयरलाइंस में। कोई भी यूनियन या कोई भी अभी तक हुई, मगर अजय सिंह साहब ने ये ज़रा ध्यान में लेके एक चीज़ हुई क्यों, ये चीज़ क्यों की लोगों ने, क्योंकि इतने साल से लोग झेल रहे, लोगों का कुछ काम नहीं हो रहा है, तभी तो जाके ये चीज़ बन गई। उसके लिए साहब आप खुद ज़रा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि लोगों में असंतोष क्यों पैदा हो गया। तो आप खुद और आपकी टीम ने ज़रा ध्यान दीजिए कि ये क्या चल रहा है मुंबई सेक्टर या अदर सेक्टर पे, तो उस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिए। लेकिन आपको उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और ठीक होना ही चाहिए। सर पूरे यूनियन है यहाँ के, उनके लॉयर्स वाइस प्रेसिडेंट भी है, अध्यक्ष भी है, एसोसिएशन है। ये गलत फहमी है कि यूनियन है, अभी यूनियन नहीं है, एसोसिएशन है। एंड देर आर, अगर अजय सिंह जी चाहे, जो हेड है स्पाइसजेट के, तो अगर उनका है कि हम चीज़ कॉन्ट्रैक्ट, वी आर गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू एवरीबॉडी, हर इसको सेगमेंट करके हर चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके दूसरे कंपनी में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। देयर वेरी लीगल प्रोविजंस है आपके पास लीगल अपॉर्चुनिटीज़ है, लीगल जो ऑल्टरनेटिव्स है आपके पास है। बड़ी कंपनी के पास और भी ऐसी कंपनीज बहुत है जहाँ इसको सब कॉन्ट्रैक्ट करके, वही अगर आपका पॉलिसी है कि वी आर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, you can subcontract this employees into a different organization, which could be a subsidiary, which could be company close to you or indirectly owned by you. कुछ ना कुछ करके कर सकते हैं, but the appeal of the people of all the association members जो आपके लॉयल सर्विस कर रहे हैं 10 साल से, उनका यही है कि इस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जो जस्टिफाइड ऑर्डर है उसको चैलेंज मत कीजिए, because it hurts them. They want to be with SpiceJet. They have been working with SpiceJet. They have been working through the lockdowns. They have been working through all kinds of times, good times, bad times where SpiceJet is concerned. And when justice has been done at industrial tribunal, and probably अजय सिंह जी को शायद ये मालूम भी नहीं है कि ये स्थिति पर कैसे पहुंचे। अजय सिंह जी को इस चीज के बारे में, डिस्प्यूट के बारे में शायद मिस इन्फॉर्मेशन मिले हैं, उनके जो एचआर डिपार्टमेंट ने मिस इन्फॉर्म किया हो, मिसलीड किया हो। तो अभी एक डायरेक्ट है, एम्प्लॉयज ट्विटर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे कि आप रिक्वेस्ट है, इस ऑर्डर है जो 463 एम्प्लॉयज को रीइंस्टेट करने वाले ऑर्डर है, उसको आप चैलेंज मत कीजिए। यहाँ अगर लोगों में कुछ डिसओबीडियंस हो, मॉडल कॉन्डक्ट का वायलेशन हो तो हम समझ सकते हैं, बट यहाँ पर किसी के खिलाफ कोई इंडिविजुअल चार्जशीट है ही नहीं कि ये गलत काम किया, ये किसी के ये अपने फुलफिलमेंट में कमी रह गई हो, अपने चार्ज ड्यूटी निभाने में कोई कमी रह गई हो, ऐसे कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाली बात है, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कैन बी सॉल्व्ड बाय हैविंग ऑल्टरनेटिव रेमेडीज। और हम लोग चाहते हैं कि स्पाइसजेट के टॉप मैनेजमेंट अलॉन्ग विद अजय सिंह इसको ऑल्टरनेटिव्स में चूज करके, अगर आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना है, तो पूरे एम्प्लॉयज 463 प्लस और भी एम्प्लॉयज जो है उनको, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उसको अलग कंपनी में जोड़ के उसको सब कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। नाउ वी हैव एज जर्नलिस्ट वी हैव अ प्रॉब्लम सेलिबिनास को देना और अपने एम्प्लॉयज जो लॉयल 10 साल से आपके सर्विस कर रहे हैं उनको इग्नोर करना। इट इज अगेन not something a person of the height of Ajay Singh will ever think of doing. He will never think of doing that. जो लॉयल अपने 10 साल सर्विस किया हो उसको नजरअंदाज एक दिन में करना या 2 महीने 6 महीने में करना, I don't think he is that kind of a person. So this is not to substantiate or victory को जश्न मनाने का वक्त नहीं है, यह हम लोग रिक्वेस्ट करने वाली वक्त है कि अजय सिंह जी इस चीज को मानने की अपील न करें। I'm sure he will. Because the fact remains that I can't believe a man like Ajay Singh would do this. Obviously, he's been misinformed. उनको मिसइन्फॉर्म किया गया है, उनके कान भरे गए हैं, उनको शायद गलत जानकारी दी गई हो कि भाई ये लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दीज आर योर पीपल। आप इनको अपने साथ रखिए, अपनी एयरलाइन को बढ़ाइए। आखिरकार ये सब लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, अभी तक आपके साथ काम कर रहे हैं, बुरे वक्त में अच्छे वक्त में आपके साथ रहे हैं, अब भी आप इनका साथ दीजिए। मैं मानता हूँ प्रदीप जी, बानल साहब, सावंत साहब, सबसे बड़ी बात यह है आज की तारीख में एयरलाइन सेक्टर, एविएशन सेक्टर बहुत मुश्किल में है। हर एक कोई मानता है, कोई ये लोग बोनस नहीं मांग रहे, पीएफ नहीं मांग रहे, ये नहीं कह रहे कि भाई हमारी सैलरी डबल कर दो, ये नहीं बोल रहे कि आज आप हमें 12,000 या 15,000 रुपये महीने का दे रहे हैं, आप हमें 30,000 रुपये दीजिए, ये नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें 3 लाख दीजिए। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं
कि जो जैसा है वैसा चलने दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। ये 463 लोगों का जो ऑर्डर आया है, बड़ी कृपा होगी अगर आप इसको चैलेंज ना करें। नंबर एक, बाकी जो 80 लोग हैं उनको भी आप वापस ले लें बाइज्जत, आपकी भी इज्जत रहे, इनकी भी इज्जत रहे, पूरी कंपनी जो है एक फैमिली की तरह काम करे जैसा कि अब तक कर रही है। ये मैं इनकी ओर से आपको अपील कर रहा हूं। और जहां तक एसोसिएशन का सवाल है, इनका आखिरकार क्या मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि कंपनी चले। आखिरकार अगर कंपनी अच्छी तरीके से चलेगी, प्रॉफिट बनाएगी, स्पाइस जेट और बढ़ेगी और बढ़ेगा, तो इन सब लोगों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। अगर मान लीजिए स्पाइस जेट को कुछ हो जाता है तो इनका क्या होगा? तो लिहाजा इन सब का हित जो है वो स्पाइस जेट का हित है, और स्पाइस जेट का हित जो है वो इनका हित है। सिंपल चीज है, ये बड़ी साधारण बात है। लेकिन फिर भी सावंत साहब आपको, बंदल साहब आपको, आज का जो ऑर्डर आया है आप सब लोगों के हित में आया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा, ये कोई जश्न मनाने का टाइम नहीं है, ये रिक्वेस्ट करने का टाइम है। अजय सिंह जी से, आप अजय सिंह जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करें व्यक्तिगत तौर पे। मैं उम्मीद करके जो ये चलता हूं कि वो वास्तविकता में मान जाएंगे। प्रदीप जी, मेरा ऐसा मानना है। इन एनी इवेंट वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग अपने काम पर वापस लौटेंगे। That's all we've got for you in On Nation Now on this show tonight from both Pradeep and myself. We'll see you again tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार।